السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے ایک ایسے سیگمنٹ کے ساتھ جو کئی دن سے ہم نے نہیں کیا. اس کا تعلق مختلف کیفیز میں، ہوٹلز میں، پبلک پلیسز، لاؤنجز میں بیٹھے ہوئے اپنے چند ٹپیکل دوستوں کی وہ حرکتیں ہیں جنہیں شائستگی، تمیز، تمدن اور کلچر ہرگز نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ دوست چونکہ مصر ہوتے ہیں اور اس لیے ہم بار بار انہیں دکھاتے ہیں تاکہ شاید ہماری یہ تلقین، پند و نصائح ان کی عقل میں آ سکے. تو چلتے ہیں ایسے ہی ایک ریسٹورینٹ میں. یار میں تینوں پہلے بھی کہا سی کہ جڑیاں گلاں نے نا یہ سانو ساری زندگی بھولن گیاں نے. ایک منٹ ذرا سیلفی وہ لالی پھول سی مہندی لگا ان گورے ہاتھوں پہ، ذرا تم دل کو بہلاؤ، میرا محبوب آیا. یار کی زمانہ سی ہیں، میرا محبوب آیا ہے. نظر نہیں آ رہی تھی فیملی بیٹھی ہے. باجی گا ہو رہا ہے اسی تو کچھ بھی نہیں کرن دے. وہ پتہ نہیں کوئی سیلیبریٹی ہے. بھائن تسی کو اپنا کوئی شو وغیرہ کردے ٹی وی تے آندے تسی؟ جی بات تھوڑا بہت کر لیدا ہے. کدوں دا شوق ہے تانوں گان دا؟ میں ٹک ٹاک بنا لاں پھر ذرا. یہ چاند سا روشن چہرہ، زلفوں کا رنگ سنہرا، کیا ہوندا پیتے سے نیلی آنکھیں. بھائیان جب فیملیز بیٹھیاں نے آرام نال بیٹھو، بیٹھیاں رہن دو. اسی کی کہنے انہوں باہر جا کے کر لو. تسی یہ ٹک ٹاک باہر بنا لو. تہاڈی مہربانی، فیملیاں سارے کسٹمر ڈسٹرب ہو رہے نے. او سر میں حاضر ہو رہا سا، کوئی طریقہ بلان دا اس طرح نہیں کریدا سر. یار ہوٹل تے اس طرح ہی بلائی دا. تو تے بھراوا انج جویں ساڈے چیئرمین لگا. آفتاب صاحب ہے دیکھ رہے ہو کی کچھ ہو رہا ہے ایتھے. یہی کچھ ہوتا تھا پہلے بھی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہم یہی کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، بلکہ ڈکے میں اضافہ ہی ہوا ہوگا، کمی تو نہیں ہوئی ہوگی. آفتاب صاحب تسی جتے بیٹھے ہو نا اپنے کام نہ کام رکھو، اتھے موجاں مارو، ایویں سان نہ ڈسٹرب کرو پلیز. یاد رکھنا انجام اس کا خواری ہے. تم اس وقت نقض امن کا باعث بن رہے ہو، ضلالت کر رہے ہو، اور میں حیران ہوں کہ کیسے عجیب نودولتے ہو. کپڑے تم نے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، شرم تمہیں آ نہیں رہی. اور وہ دیکھو وہ ایک ڈرم نما آدمی لگاتار اپنی بغلیں کھجا رہا ہے جیسے گرم حمام پہ آیا ہوا ہے. سر اے خورک مینوں ایتھے آ کے ہوئی ہے، لگتا ہے مینوں کوئی الرجی ہو گئی ہے. تو یار باہر جا کے کر لیں، گھر چلے جائیں. یہ کچھ ضروری ہے یہاں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کو ذلیل کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں. او سر بس کر دیو پلیز. ایڈا اچھا ماحول بنیا سی، ایڈا خوبصورت ماحول کہ میں تانوں دس نہیں سکدا کیڈا خوبصورت ماحول بنیا تے تسی. اچھا یہ جو گنجا ہے نا، جو اگر خاموش رہے تو بڑا ویل بیہیوڈ، ویل ڈریسڈ لگ رہا ہے، ایجوکیٹڈ لگ رہا ہے. انتہائی چیپ آدمی. یہ چیپسٹ آف دا چیپ ہے. نہ یہ ویل بیہیوڈ ہے، نہ یہ ایجوکیٹڈ ہے، اور یہ کوئی نودولتا ہے. کہیں سے کوئی اس کے 2-4 پلاٹ آگے ہوں گے کسی ایسی چیز میں کہ اس سے بوسٹر مل گیا. ورنہ جس طرح کی حرکت اس نے کی، ڈیڈ یو نوٹس اس نے کیا کیا؟ سر یہ بڑا خوبصورت کر کے نا، یہ کہیں پہ نگاہیں اس کی، کہیں پہ نشانہ. یہ وہ کیس ہے. او یار سارا موڈ ہی آف کرتا. پلیز کھانا لا یار، پلیز یار جلدی کچھ کھان نو لے یار. ہلو یار تو کھادا مینیجر ہے، تو بچے اسکول کیوں نہیں گئے؟ آپ جیسے آئٹم ادھر بھی بیٹھے ہیں. کیوں نہیں گئے بچے اسکول کیوں نہیں گئے؟ آہستہ بھائی آہستہ. ڈرائیور نے گل کرا میری پیچھو آواز ہوتی آن ڈئی، انہوں کہے اچھی نہ بولے. اور آپ جتنا مرضی اونچی بولتے رہے. یار تینوں سمجھ نہیں آن ڈئی. یہ کون صاحب ہے؟ سر ایکچولی مینوں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں معذرت چاہنا سر. گل یہ کہ میرا بچپن دا دوست ہے، ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ، ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ. کیا کرتا ہے؟ او یار بغیر تھی یہ ویسے مجھے پڑھا لکھا لگ رہا ہے، نفیس آدمی لگ رہا ہے. سر اللہ دی قسم میں کوئی پڑھیا لکھیا نہیں. میں بھی ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਚਾਵਲ ਸੀ. پھر ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. اچھا کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں نا یہ 5 سال کی گرومنگ جی، اس کا اثر. اور یہ آپ کا دوست ہے؟ او محلے دار جناب اکٹھے اسی رہندے رہے ہاں. دس ہن چپ کیوں بیٹھا؟ دس جو مرضی دسی جا آ حرکت نہیں کرنی. اچھا یہ بھی ایک بڑی عادت ہے. توبہ توبہ، اور بد نصیبی ہے کہ یہ میری بھی تھی. میں نے دوسرے سے بات کرنی ہے نا، اسے متوجہ کرنے کے لیے حجہ ضرور مارتے. میں بھی کسی کو جانتی ہوں وہ بھی ایسے کر، وہ ایون گاڑی چلا رہی ہوتی نا فوراً ٹیپ کریں گی. صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بات ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے کہیں بیٹھے ہیں اور آپ نے نہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو، ہر تھوڑی دیر بعد ٹیپ ٹیپ ٹیپ. اچھا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کریکٹ کیا جائے، سمجھایا جائے، وہ سمجھ جاتے ہیں. لیکن بعض بدتمیز روحیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا مجھے ان بھائی صاحب کو دیکھتے ہی یقین ہے کہ ان پر کوئی کلام نرم و نازک
बेअसर हो। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। लेकिन इस वक्त वो ठीक हो चुका है। ਉਹ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਕੀ ਔਰ ਰੱਖ ਬਰਾਜ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यार ये क्या हरकत की आपने? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਲੇਰੀ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। सलमान, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟੇ ਫੇਰੂ। ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਕੌਣ? ਕਿਸੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨਾ? ਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇਰੀ। ਓ ਯਾ ਮੌਲਾ, ਓ ਵੇਟਰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ। ये क्या हरकतें हो रही हैं? ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੋਬਾ ਬੇਵਾ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ। ਮੱਥਾ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਡਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो तुम तो हो ना, सारा कुछ नजर आ रहा है। ਸਰ ਇਹਦੇ ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ਯਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁੰਗੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਜੰਮ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੰਮ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। सर ये मुझे समझ नहीं आई, ये जो कह रहे हैं जम के सट देता। अगर आप देखें तो चाटना ग्रूमिंग को कहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई, कभी डिक्शनरी देखिए ग्रूमिंग का मतलब क्या है। शेरनी जब अपने बच्चे को जबान के साथ उसकी एक तरह से कंघी करती है ना, बिल्ली जब अपने किटन को उसको बना रही होती है, संवार रही होती है, इसके लिए संवारना है, संवारने को ग्रूमिंग कहते हैं। ये कभी तुम्हें किताबें नहीं दे सकती, ये तुम्हें आगोश मादर ही सिखाएगी, जब भी सिखाएगी। तो हम सारे एम्बेसडर्स होते हैं, अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं ना। क्या हमारी ख्वाहिश होगी कि हम अपने मुल्क की बदनामी का बायस बने? लेकिन कैसी बदनसीबी है कि मैं आंखें बंद करके यूं करके बैठा हूं ना, कहीं हल्ला गुल्ला हो मुझे समझ आ जाएगी मेरे हम वतन है कहीं। सर हमने पहले भी ये बात की है कि आप सेम नंबर ऑफ पीपल के साथ जब एक फ़्लाइट में आ रहे हैं, अगर वो अमेरिका या इंग्लैंड से आई है और आखिरी स्टेशन सपोज यूएई या किसी भी मुल्क से लाहौर की वाली फ़्लाइट में वही लोग पिछली फ़्लाइट में और होते हैं, आखिरी फ्लाइट में बिल्कुल ऐसा लगता है आप किसी लोकल बस पे बैठ गए। यानी वो उन्हें ऑक्सीजन मिलना शुरू होगी। बदतमीजी समटाइम्स बिकम्स अ काइंड ऑफ एन ऑक्सीजन फॉर यू। पता नहीं उनका दिल करता है। दैट्स अ लाइसेंस टू किल। ये मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ, आपको याद होगा कि अताउल्लाह कासमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत कॉलम था, ओए शीदे तू तो बड़क मार मैं जेंट्री च फंस गया। वो बेचारे मजबूरन बैठना पड़ता। तो ये सारे जेंट्री में फंसे हुए हमारे हम वतन होते हैं। जो ही इन्हें साजगार माहौल मिला, इन्होंने वो सब कुछ करना होता है। जो मैंने कई दफ़ा देखा है कि खाना आप अपनी मर्ज़ी से खाएं ना, कि आपके यहाँ से भी गिर रहा हो, यहाँ से भी गिर रहा हो, उसका मज़ा बहुत आता है, लुत्फ़ बहुत आता है। और एक बर्गर तो ऐसा है जिसकी टैग लाइन है कि ईट लाइक यू मीन इट। और एक वो है ना फिंगर लिकिंग, वो भी। तो ये वंस इन अ वाइल चल जाते हैं भाई, ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बात जो एम्बेसडर वाली थी ना, कि अगर हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ जाएंगे लोग कहेंगे हाँ यार पढ़ा लिखा मुल्क है भाई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ से, पढ़े लिखे लोग आते हैं। महज मुल्क ही नहीं, आपका घर भी तो एक इदारा है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि लोग आपकी माँ बाप को बात करें। वो जो उसने कहा है ना कि तुम जम के सुट देता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी ने ग्रूम ही नहीं किया, ना तुम्हारी माँ ने ना तुम्हारे बाप ने। इसके लिए उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है तरबियत। जी जी। और हमारे यहाँ स्कूल तो क्या, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी तरबियत नहीं की जाती, वॉशरूम तक यूज़ करना नहीं सिखाया जाता। तौबा। अब देखें वो मोटा किस तरह वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। यार ये कोई बात है भला कि तुम्हें किसने कहा है कि तुमने अपना गला बावाज़े बुलंद साफ करना है? और अगर आज तुम गला साफ नहीं करोगे तो बैक्टीरिया तुम पे हमला। और बैक्टीरिया को तुमसे डर होना चाहिए जितनी तुम्हें खुरक पड़ी हुई है, जितना तुम खुजाते फिर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये ग्रांडेल शख्स जो है उसने ठीक कहा है, आप दोस्त नुमा इंसान के। और
वो दूसरा जो है वो गाने गाए जा रहा है टिकटॉक। अच्छा, टिकटॉकर्स यहाँ भी बेशुमार हैं भाई, हमारे अपने बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये फहद जी, फहद इज वन ऑफ द रिनाउंड टिकटॉकर्स ऑफ यूएई। और क्या फहद पाकिस्तानी नहीं है? ही कम्स फ्रॉम रावलपिंडी, और उसमें कोई फर्क नहीं, वो हिथरो उतरे, लाहौर अल्लामा इकबाल पे उतरे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो एग्जैक्टली वही का वही। और मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई, दोस्त, नौजवान, ये पिछली जनरेशन है तो मेरा ख्याल है ठीक होना ही नहीं है, ये नौजवान तो कम से कम अपने आप को ठीक कर सकते हैं कि आप जहां जाएं आपके हुस्न सलूक से, आपकी बहादुरी से, आपकी दिलेरी से लोग समझें कि पता चले उन्हें, क्योंकि इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। अब बहादुरी दिलेरी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को टकरे मारते फिरें, जहां किसी को हेल्प करने का बहादुरी दिलेरी इज ईसार। ईसार है, अपने आप को मुश्किल में भी डालना पड़े। कोई खवातीन है बेचारी, हेल्पलेस है, उन्हें हेल्प करें, लोग देख रहे हो कि यार ये पाकिस्तानी है जो हेल्प कर रहा है, मेरे जैसे का सर फख्र से तब बुलंद होगा। पता है मेरी परवरिश इतनी आला हुई है, ठीक है ना, और महंगे प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। हाँ जी। कौन से स्कूल में पढ़े हो? प्राइवेट अस्तबल स्कूल। हाँ जी। वो तो मेरे नाले के उन्हें नाले हैं यार, को गाना गुना सुना, बक बका मौला है प्यार को तता या फड़क दा गाना सुना कोई। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा बकवास बंद कर। तौबा, किस कदर ਜ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੱਤਰ ਜਮਾ ਖੜੋ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। क्या है हैं? क्या है मैं कभी औरतों में भूल गया। लखो तेरे मुंह वाले और मेरे साथ- समझदा नहीं अपने आप को। मेरी बात सुनी। ओए मैं तेरे नस्ल बर्बाद कर देवां तेरे साए को हर बार। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਔਲਾਦ। वाह वाह वाह। वही वाह। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, वाह वाह वाह। और आज हम खैबर पख्तूनख्वा की एक इंतहाई हरी भरी, खूबसूरत, जरखेज और तारीखी तहसील में लेके जा रहे हैं आपको। हरीपुर। हरीपुर को 1992 में ज़िले का स्टेटस मिला। इसकी 3 तहसीलों में से एक हरीपुर है, एक गाजी है और एक है खानपुर। सही। ये वो खानपुर नहीं है जो आप समझ रही हैं, वो जो पेड़ों वाला खानपुर है ना, दैट इज इन बहावलपुर डिवीजन, और वो साउथ पंजाब में। ये खानपुर केपी में है, और ये पहले एबटाबाद का हिस्सा था। एबटाबाद से टूटकर 1992 में ये एक ज़िला बना जिसकी 3 तहसीलें, उनमें से एक खानपुर है। खानपुर डैम नहीं सुना आपने? जी सर। बहुत खूबसूरत डैम। बहुत कम लोग जानते हैं कि तरबेला की जो झील है, इंतहाई हसीन झील, अब तो खैर उसमें सिल्ट इतनी हो गई है कि उसकी खूबसूरती मान पड़ गई है। उसका एक हिस्सा हरीपुर को टच करता है और एक बड़ा हिस्सा सवाबी को। सवाबी इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन केपी। इसके आसपास अटक है, रावलपिंडी है, एक साइड इसकी एबटाबाद को लगती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका महल वकू क्या है। और आप हैरान होंगे कि इंतहाई हसीन खूबसूरत सीनरी इस्लामाबाद से सिर्फ 65 किलोमीटर्स पे है। अगर आप, एक रास्ता है कोट नजीबुल्ला रोड, अगर आप वो लेना, आप इन लेस देन एन आवर आप हरीपुर पहुंच जाएंगे। अच्छा सर, हरीपुर का हजारा से भी कोई ताल्लुक है? जैसे जब कोई न्यूज दिखाते हैं डिवीजन हजारा थी, दोनों का इकट्ठा नाम आता है हरीपुर हजारा। हाँ। आपको हजारा नाम का डिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं मिलेगा। हजारा एक बड़ा मशहूर है, हजारा। मुझे वो डिस्ट्रिक्ट दिखाएं कौन सा है जिसका नाम हजारा है। देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट विद द नेम ऑफ हजारा। हजारा एक इलाके की निस्बत से लिया जाता है। हरीपुर हजारा, हजारा इलाका है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸਤਨਤੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। कुस्तुनतुनिया तन में आसान दस देना, कॉन्स्टेंटिनोपल। और इसकी जगह भी इस्तांबुल। अच्छा, इस्तांबुल तो कह सकते हो ना, ਇਹ ਇਸਤੰਬੁਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी आपको पता ही नहीं कि इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया का नया नाम है।
ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। क्यों? ਸਾਰਾ ਔਖਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਦਾਸ ਖੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ। ਦੇਖੋ मोहतरम, ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? नहीं नहीं, ये यहाँ पे साहिल समंदर पे एक दिन मेरे साथ बैठे हुए थे भाई साहब, और आपकी याद बड़ी शिद्दत से इन्हें आ रही थी। मैंने लाइन वो ऐसे ही एक वो बना दी नज्म के, टहनी पे किसी शजर की तन्हा खच्चर था एक उदास बैठा। मैं ना बुलबुल था एक उदास बैठा। जनाब असल शेर ते सुना दियो प्लीज। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था एक उदास बैठा, कहता था रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूंगा किस तरह आशियां तक हर चीज पर छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आहुजारी जुगनू कोई पास ही से बोला। ये इकबाल ने कितना बड़ा दर्स दिया है पोइट्री के जरिए। एक दूसरे के काम हो, मैं राह में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਦੇਈਏ। अच्छा जी, हरिपुर एक सरसब्ज व शादाब वादी है और इसका लुत्फ आप तस्वीरें देखकर नहीं उठा सकते। वहाँ जाएं, वहाँ का मौसम, वहाँ की सीनरी, वहाँ का खुला और शफाफ आसमान आपको लुत्फ दे देगा। फिर यहाँ के फल यानी अमरूद वहाँ का नायाब, शीरी बहुत लाजवाब, रेड ब्लड माल्टे, वाह वाह सुभान अल्लाह। अटक में भी बहुत शानदार, इलाका वही है, बिल्कुल साथ साथ है, और मीठा शीरीन पानी और उसके माल्टे, चकवाल तक जाता है ये सिलसिला। लीची भी है यहाँ पे, लीची भी है, लौकाट, और यहाँ से लौकाट का सिलसिला जो है ना चलता, इतनी मोटी, और जो बेस्ट है पता कहाँ है? कहाँ? कलर कहार। अच्छा जी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इस्टेट भी बड़ी मशहूर है, हत्तार इंडस्ट्रियल इस्टेट बड़ी मशहूर है, वो भी यहीं पे है। एक पुरानी कंपनी यहाँ पे हुआ करती थी, 1952 से चल रही थी, टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, TIP। यस। जो हर पुराने फोन सेट के ऊपर TIP लिखा होता था ना, तो वो भी अनका हो गए हैं, कभी नजर ही नहीं आया। नहीं, कैसा कल्चर चेंज हुआ है। हमने तो शायद मेरा ख्याल है नहीं देखा हुआ, नहीं पता। आपने नहीं देखा हो, हमने उसके साथ ठुकाइयाँ की। वो असला होता था बाकायदा, वो जो काला सा जर्मन सेट होता था ना, कमाल की चीज होती थी वो, पुड़पुड़ी सेक देंदा ही सर। अच्छा जी, हरिपुर की वजह तस्मिया इसलिए दिलचस्प है कि ये बंदा मेरा भी बहुत फेवरेट था। महाराजा रंजीत सिंह के साथियों, उसके जर्नैलों में मेरे हिसाब से जो सबसे बहादुर और सबसे दबंग सरदार था, उसका नाम था हरी सिंह नलवा, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स इन हिस्ट्री। उसने इस शहर को आबाद किया था। इसके गिर्द बहुत बड़ी फसील 16 मीटर बुलंद और 4 मीटर चौड़ी फसील बनाई गई हरिपुर के गिर्द, और ये हरी सिंह के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, आ जाइए इसके अहम मकामात की तरफ जी। बामाला स्टूपा, अल्लाह खैर, सारे कोई जर्मनी दे विच शहर है यार। हरिपुर के अंदर स्टूपाज होते हैं, स्टूपा, ये बुद्धिज्म के जो निशानियां रह गई हैं ना, एक छोटा सा माबद टाइप चीज, गुंबद नुमा एक छोटी सी चीज, चबूतरा सा एक होता है। आपने मोहनजोदाड़ो का चबूतरा नहीं देखा? मोहनजोदाड़ो की जब तस्वीर आती है तो वो एक आपको उसका टेरेस नजर आता है, उसका चबूतरा नजर आता है, उससे मिलती जुलती चीजें ये जिन्हें स्टूपा कहते हैं। बुद्धिज्म में स्टूपा इनकी एक इबादत की, ज्ञान की जगह होती थी। तो बड़े बड़े स्टूपाज यहाँ पाए जाते हैं, बुरे हालों में है वैसे। अरे कितना को पुराना? ये 2nd सेंचुरी, यानी यूं समझ लीजिए कि कुछ तकरीबन 2000 साल। ये खानपुर डैम के बिल्कुल करीब है, दरियाए हारो के ऊपर। हारो, दरियाए हारो बहुत हसीन दरिया है, पहाड़ी दरिया है, छोटा, कभी तुगयानी में बड़ा लाजवाब होता है, एंड वेरी क्लोज टू खानपुर डैम। ने प्यार ना कहंदे ने, बंदे दा दिल करदा डुੱਬ के मर जाए बंदा। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੂਬ ਆ। अच्छा जी, 1700 साल पुराना यहाँ पर स्टैचू है
वाओ, गौतम बुद्ध का, और हमें पता भी और नहीं। हमें पता भी नहीं है। देखो जुल्म दर जुल्म ये है कि हमें पता, या तो ना हमारी बकेट लिस्ट में शामिल है जी हमने हरिपुर जाना है और हमने ये जगह देखनी है, और सानू पता ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। क्यों नहीं पता? ना आपकी तारीख की किताबों में तज़किरा है, ना आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, कख बन के दूरा नहीं करता, नालायक तरीन डिपार्टमेंट्स। वैसे ये भी गैर ज़रूरी है कहना, ये कहना कि वो सरकारी डिपार्टमेंट ही काफ़ी है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिस पे आपको किसी इलाके का कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन मिल सके? शकील साहब हर हफ्ते रोना रो रहे होते हैं कि यार संबड़ियाल की प्रॉपर आबादी तलाश करते हुए, शकील साहब इससे बेहतर था टुर के संबड़ियाल चले जाते, एक एक बंदा गिन लेंदे तो ठीक सी। जितने मुंह उतनी बातें, हर एक ने मुख्तलिफ फिगर दिया, जबकि होना ये चाहिए कि आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट हो, होनी चाहिए। और ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट को चाहिए कि इस चीज का ख्याल रखता। अच्छा जी, फिर आइए खानपुर डैम। अगर आप कभी जाएं पुन्नू साहब जी सर, तो खानपुर डैम जरूर जाइएगा। वहां पर डूबी होते भाजी, मैं क्यों जाना स्पेशल? वहां पे आप कश्ती रानी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं अगर इजाजत ले लें आप। पानी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन पानी, बहुत हसीन। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੀ ਹਸੀਨ? नीला, ब्लू एंड ग्रीन वाटर, यानी टर्कॉइज ब्लू भी मिलेगा आपको, टर्कॉइज ग्रीन भी मिलेगा। पाकिस्तान में अगर कुल देखा जाए तो 22-23 इंतहाई हसीन आबशारें हैं, उनमें से 8 आबशारें यहाँ हैं। वाह जी वाह। हरिपुर हरिपुर। तो वाटरफॉल्स देखनी हो तो आप जैसे कैसी कैसी हसीन आबशारें हमने कनाडा में देख रखी हैं। एक तो खैर मदर ऑफ ऑल आबशार, उसका तज़किरा ही नहीं करना, शैनन। शैनन। पुन्नू गया था हमारे साथ शैनन? नहीं सर, पुन्नू तो नहीं गया नहीं था। तो पुन्नू किधर था? मैं ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜੀਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਦਾਸ ਰਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। गर्मियों में गए थे ना हम शैनन फॉल्स, तो गर्मियों में वीजा नहीं लगा था। पुन्नू सर्दियों में गया था। और सर्दियों में जाती उसकी तीमारदारी में हाँ, लगी। इनकी नानी बीमार हो गई थी। उदो मैं गया था जनाब। शैनन फॉल्स पे रंगीला साहब गए थे। रंगीला साथ था? जी हाँ। हाँ जी। 4-5 इन लोगों ने मुफ्ता लगाया था, पहले से इरादा किया हुआ था हमें जोड़ने का, और सैर सपाटा करके आ गए। ऐ भी जिंदगी दी एक खलश है जड़ी दूर करांगे। पता नहीं किस तरह दूर करोगे रंगीला साहब। मौका से दियो जनाब। फिर जाके ਇਹ ਪੁੰਨੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? जी जा रहे। ਉਹ ਸ਼ੇਖਰਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, यहाँ पे है नूरी आबशार, नूरी, जो इंतहाई खूबसूरत है, और ये इत्तफाकिया डिस्कवर हुई कि किसी ने ना फोन पे वीडियो बनाई उसकी और वायरल कर दी। लोग हैरान रह गए, ये किधर है? उनके जनाब जस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम इस्लामाबाद। और मुझे वो बात याद आती है जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था ना, बड़ा हसीनो जमील उमरा का शहर, रावलपिंडी में ख्वारी थी बहुत, तो किसी बड़े आदमी ने लिखा था कि इस्लामाबाद इज़ अ सिटी 15 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जनाब, मशाहीर सदर अयूब खान, वाह जी वाह। सदर अयूब ने बुनियाद रखी थी इस्लामाबाद शहर की, क्योंकि इनका गांव टच करता था पिछली पहाड़ियों को, रेहाना। यस, रेहाना वॉज द विलेज। वाह। अच्छा, उनके बेटे गौहर अयूब खान जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, फिर उमर अयूब खान जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल आदमी है, और ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। नहीं, मैं चूँकि एक तवील दौरानिए की मुलाकात इनसे करके आया हूँ, आखिरी जो ज़मान पाक डेज थे ना, तो मुलाकात हो जाती थी वक्तन फ़वक्तन, तो आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कोर्स विद हिम एंड आई फाउंड हिम अ वेरी एनलाइटन्ड, वेरी ब्राइट पॉलिटिशियन। उसके करियर में वाहिद जो ड्रॉबैक है वो अयूब खान है, जो स्टिग्मा है एक तरह से, लेकिन है क्या करे, ही कैन नॉट चेंज हिज फैमिली ट्री। अच्छा जी, कतील शिफाई, क्या बात है, बेहतरीन लिखारी, नहायत शानदार नगमा निगार, उनका ताल्लुक भी हरिपुर से है। रियाज सागर, पोइट नेम, पोइट रियाज सागर, ये हरिपुर में पैदा हुए 1952 में। अच्छा जी, खाबे, ओए तगड़ा हो जा, पांडे पुंडे सीधे कर ले, आ गए नहीं खाते। मैं क्या खैरा जान। तुर्की पकौड़े, तुर्की ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਜੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਕੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो सर ये तुर्की क्यों है? वो तुर्की में काम किया करता था। सलीम जो पकौड़े की शॉप है ना, सलीम भाई, सलीम भाई, तो ही यूज्ड टू वर्क इन तुर्की, तो ही माइट हैव लर्नड दिस मस्ट बी सम स्पेशल रेसिपी, कोई स्पेशल स्पाइस डालते तो वो कहता है कि तुर्की पकौड़े हैं। और हालांकि
पकौड़े हमारे यहाँ बड़े शानदार, इंडिया की तो सौगात है पकौड़े, 150 किस्में हैं पकौड़े की। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਕੌੜਾ ਉੱਥੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਟਨ ਆਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਾਜੀ। किसने कहा मटन आन लग गया? ਸਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਟਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मटन दुश्मन, ये वतन दुश्मन होता है ना, मटन दुश्मन अनासर। अच्छा जी, अगली डिश जरा गौर कीजिए, जी लस्सी का साग। बहुत अच्छे। सर मैं अपनी पूरी जिंदगी च पहली बारी लस्सी दा साग सुनिया और मेरी पूरी जिंदगी ते लानत। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। क्यों लानत क्यों? ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਹਰ ਸਬਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। अच्छा जी, इसमें पानी बहुत थोड़ा होता है, पानी की जगह लस्सी डलती है और लस्सी फिर ना बड़ी संघनी हो जाती है, गाढ़ी, तो वो फिर इसके अंदर एक क्रीमी लुक आ जाती है, वाइटिश। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। तो वो लस्सी का साग होता है और खटाई होती है उसमें। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। नहीं क्यों, मैं ठेका ले खुआंदा, मैं जिक्र करता हूँ, जाके खाओ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਿਫਤਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। कटवा गोश्त, ਇਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਟਵਾ? बहुत लजीज डिश। और सच पूछें तो हरीपुर का अगर कोई एक एम्बलम हो सकता है, अगर कोई नुमाइंदा डिश एक मखसूस खाबा हरीपुर का हो सकता है, तो दैट इज कटवा डिश। कटवा मीन्स कटवा मटके में, मटका टाइप होता है ना, उसके अंदर जैसे हांडी गोश्त है ना, जी जी, जिस तरह कुन्ना है ना, जिस तरह कुन्ना, कुन्ना मीन्स बड़ी हांडी, कुन्नी हांडी है, कुन्ना बड़ी हांडी जो गहरी होती है। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਘੁੰਨਾ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। तो वो खुन्ना होता है यार। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘੁੰਨਾ ਸਕਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। ये बहुत गला हुआ इंतहाई खस्ता गोश्त होता है, ये बीफ में बनता है। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ जी, मटन फिर नहीं देगा। अच्छा जी, फिर एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है खैबर शनवारी रेस्टोरेंट, और यहाँ पर बैठने का अलहदा इंतजाम है, हुजरे भी हैं फैमिली के लिए, और इंतहाई लाजवाब डिशेज हैं यहाँ की। नमकीन दुम्बा, दुम्बा कढ़ाई, मटन मसाला, मटन सीख टिक्का, ये सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सर जो है ही शनवारी रेस्टोरेंट। हाँ। वाह। अच्छा जी, देसी मुर्ग की सोबत। ਭਾਜੀ ਬੂੜੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੇ ਦੀ। ਤੌਬਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਚੱਟ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਮੁਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਰੰਗੀਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੂੰਛ ਪਚਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋ। अच्छा जी, सोबत को पेंडा भी कहते हैं। बड़ी लाजवाब डिश है कि यखनी देसी मुर्ग की, उसमें रोटी के टुकड़े डाले होते हैं और वो इस कदर जूसी बन जाते हैं, वाह। जैसे तोशा होता है ना, तो वो फिर आप खाएं और वो हाथ जुड़ जाते हैं। इस तरह का देसी मुर्ग होता सर कनेडा ਦਾ ਟੂਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। सर ये सिर्फ देसी मुर्ग में ही पकता है। है? नहीं नहीं, बीफ में भी होता है, बकरे में भी होती है सोबत, तो आप डिपेंड करता है आपके पास है क्या। ਸਰ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ? वहां पर 1946 की एक दुकान है, राजपूत स्वीट्स। ਵਾਹ ਵਾਹ। निहायत बाकमाल मिठाई है वो। सर वैसे आपने कल का खाना मिस किया है, कल अकरम उदास साहब ने हमें दावत ये दी। क्या दावतें देते फिरते हो तुम सबको? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? आज वो हमारे मियां अजहर कामरान साहब हैं, हाँ, और जापान वाले। फरीद और पुन्नू, आपको पता है कि कल अकरम उदास साहब ने हमें पूरा जो दमपुख्त होता ना बकरा, ट्रे में आया था। वो तो मंदी है, मंदी खिलाई मंदी, थी। हाँ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਂਗਲ ਖਾਣ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ। अच्छे खाबे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲਾਂ, ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਕੈਸੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦਾਲ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि अपनी कटी हुई टांग पकाकर दोस्तों की दावत करने वाला शख्स मंजर आम पर आ गया। ओए होए, एक्सट्रीमली ग्रोस। ग्रोस, ग्रूसम। सर क्या ये हकीकत है?
جی کہتے ہیں کہ حقیقت ہے, ہم کوئی ذرائع تفنن نہیں ایسی چیزیں اٹھاتے اور لگا دیتے, یہ کہیں پبلش ہوتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی, اس پر بے شمار چیزیں ایسی بھی چھپ جاتی ہیں جنہیں آپ کنفرم نہیں کر سکتے. جیسے ہم آج کل اس ادھیڑ بن میں ہیں کہ اس مائی نے, وہ جو ایتھیوپین ہے, اس نے کیسے دعویٰ کیا کہ جناب مائی نہیں ہے, ینگ خاتون ہے, 16 سال کہ میں 16 سال سے کچھ نہیں کھایا. اور شکیل صاحب میں اس پہ کر رہا ہوں. جی جی آپ کر رہے ہیں, کچھ آپ کے ہاتھ لگ رہا ہے, جی جی حقیقت کے ساتھ ہے, لگتا ہے اس کا تعلق کوئی؟ سر ہو سکتا ہی نہیں ہے. بعض چیزیں جو نہیں ہو سکتی, لیکن اسی کو تو نیوز کہتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ گروس بھی بہت ہے. اس کو کرتے ہوئے مجھے افسوس, غصہ, ایستھیٹیکلی شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ ابھی ہم کیا کٹوا گوشت کر رہے تھے اور اس کے بعد کٹا ہوا گوشت کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا ضروری بن گیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ ہو کیا کچھ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ ایشو کیا ہے. ٹانگ کٹی کیوں؟ اس کی کسی وجہ سے ٹانگ کاٹنی پڑ گئی, ایمپیوٹیٹ ہوئی نا. ایمپیوٹیٹ کر کے اس کو ٹانگ دی کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے پاس رکھنی ہے, بجائے آپ پھینک دیں. تو آپ نے ایمپیوٹیٹ کرنا آپ کا کام تھا, میری ملکیت ہے, اٹ بلانگس ٹو می. سر آپ کو پتہ ہے انفیکشن کا کتنا بڑا سورس ہے, اس نے ڈکے ہونا ہے. اور نہیں, اس نے کہتا ہے میں نے فریز کرنا ہے اس کو اور میں ہمیشہ رکھوں گا نشانی کے طور پہ, تو شاید اس پہ قانون خاموش ہو. تو اس نے کہا ہوگا کہ بھائی یا تو اس کی کوئی قیمت لگاؤ یا مجھے دے دو. تو وہ لے گیا. وہ ہوگا کوئی عجیب و غریب آدمی, اس نے پکائی پھر. اور زیادہ افسوس مجھے ان دوستوں پہ ہے جنہوں نے یہ دعوت قبول کی, اچھا جی ہم کھائیں گے. نہیں سر, ہو سکتا ہے دوستوں کو اس نے پہلے بتایا ہی نہ ہو کہ ٹانگ پارٹی. میں بھی یہی سمجھا تھا. میں نے جب ڈیٹیل پتہ کی نا تو سارے اس جیسے پاگل تھے, کوئی ہوں گے نا ہپی ٹائپ کریک سے, کہ یار ہیومن میٹ, ہیومن فلیش کیسا ہوتا ہے. کبھی تو ایسا وقت ہو کہ ہم چکھ سکیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا ویسے بائی دا وے, چیانگ کائی شیک کا دور تھا, شنگھائی کی گلیوں بازاروں میں انسانی گوشت بکا کرتا تھا. مجھے تو تیری لت لگ گئی, مجھے تو تیری لت لگ گئی, زمانہ کہے لت یہ غلط لگ گئی, مجھے تو تیری لت لگ. اوے آدم خور بنو, بدکا نہ بنو. کون ہو بھی تم لوگ؟ میں وہ ہوں یا جناب جن نے اپنی لت دوستان دے مستقبل تو قربان کر دیتی ہے. اور سر صرف انسانی گوشت دا ذائقہ چکھنا سی, وہ چکھ لیا, کسی تے ظلم تو نہیں نہ کیتا. کوئی شرم کرو, حیا کرو, کو پاگل ہو تم لوگ. اور نہیں, چکھنا ہی تھا تو انسان کا چکھنا تھا, کھوتے کا چکھنے بیٹھ گئے. ਭਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੱਤ ਖਾਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ. یہ واقعہ ہے کتوں دا سر؟ شکر ہے آپ کو خیال آ گیا. لندن کا, یہ لندن کا واقعہ. میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی دور افتادہ گاؤں ہوگا, افریقی گاؤں ہوگا, یا ساؤتھ امریکن کوئی بیونڈ سویلائزیشن کوئی ایک بستی ہوگی, کینیبلز کی بستی تو ہوگی. کینیبلز میں سے کچھ. یہ لندن میں ہوا ہے واقعہ. آپ کی ٹانگ کو کوئی مسئلہ تھا یا محض آپ نے کھانے کے لیے اتروائی؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یا تو یہ اس وقت بہت ٹن ہوں گے, ٹن لوگوں کو بعض اوقات بھوک بڑی لگی ہوتی, تو اس نے کہا ہوگا میری اپنی لت پکی جائے کھا لو, تو انہوں نے کھا لی ہوگی یہ سوچ کے کہ ایسے جھوٹ بول رہا ہوگا. یا پھر کہا ہوگا اس نے کہ اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو میں ٹانگ اپنی کھلا سکتا ہوں. یا کوئی ڈیر نہ ہو, ڈیر کیا ہوگا, ڈیر بھی کر سکتے ہیں. لاؤ پھر میں اپنی لت کھواؤں, اس نے کہا ہوگا کھلا دو, انڈر سم انفلوئنس, اس کے بغیر تو نہیں. یہ سارے کوک کرتے ہیں. شراب شروب تو چیز ہی کوئی نہیں. یہ جو اس طرح کے ننگے آدمیت کیریکٹرز ہوتے کتے ہور بھی یہو جہا واقعہ ہویا دنیا جی؟ اس طرح کا تو نہیں, ڈھکے چھپے لوگ کرتے ہیں. بہار میں ایک ہوٹل تھا, پکڑا گیا, 1964 کی بات ہے. یہ ایک مشہور شرما ہوٹل, بڑا مشہور قصہ ہے اس کا, مشہور ہے, آرکائیوز میں پوری کہانی موجود ہے. دونوں باپ بیٹا لوٹتے تھے مسافروں کو جو ان کے ہوٹل میں قیام کرتے تھے, پھر مدعا غائب کرنے کے لیے ان کا گوشت مٹن کڑھائی کی شکل میں اڑا دیتے تھے. اور ان کی مٹن کڑھائی بڑی مشہور تھی, اور بہت بری سزا ملی تھی پھر انہیں, دونوں باپ بیٹوں کو. انہوں نے کنفیشن دے دیا تھا پھر. اور ہمارے ہاں یہ جو دو بھائی نہیں تھے جو قبریں کھود کے مردہ نکال کر اس کا گوشت کھایا کرتے تھے, انہیں چھوڑ دیا, وہ پھر باز نہیں آئے, وہ دوبارہ اندر ہو گئے پھر. اور پکھر, جی بھکر والے. ਭਾਈ ਭੈਂਸ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਕਦੀ? بھینس کا ਹਾਂਜੀ, کئی دفعہ کھایا, اس میں کیا ہے, ਸੇਮ ਉਹ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕ ਸੀ. انہوں نے اپنی فیلنگز دی ہیں ਹਾਂਜੀ, کہ بڑا ٹیسٹی تھا, نرشنگ تھا, اس میں فیٹ کانٹینٹ نہیں تھا, اور
اس میں فائبر بھی کم تھا. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਤ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ हाजी तुसी कदी को गोश्त खादा है गलत भुलेखे नाल? गलती से तो बंदा खा लेता है ना, जब ना पता हो तो हो जाता है इस तरह. नहीं गलती से मतलब क्या लाइक मतलब पोर्क खा लेता है बंदा. मैंने एक दफा खरगोश खा लिया था जो मुझे नहीं पता था. ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. नहीं नहीं, वो बहुत ज़ौक़ शौक से खाया जाता है. शोरबे वाला बनाते हैं खरगोश का. ये जो हेयर होता है, नॉट रैबिट, ये जो जंगली होता है. ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਦਾ ਫਿਰ? खाने का एक डोंगा पड़ा था, उनने दसते दसते में बुरकी ला ली ਆਹ और वो चुप हो गया. तो कहता कैसा लगे? मैं क्या इनकी टेस्ट ऐसे जो पाए पक्के होंगे. कहता है सही है सही मैं फिर नहीं खाता सही है. सही क्या होता है? सैयड इज अ देहाती नेम, अ जंगली नेम फॉर अ हेयर. ਸਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੌੜਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ये बहुत तेज भागता है और इवन हाउंड के हाथ नहीं आता. इसके अंदर एक खूबी है जो आम जानवर को अल्लाह ने अता ही नहीं की. पूरी स्पीड पे जाता जाता डिस्क ब्रेक लगाता है, रुक जाता, स्टैटिक हो जाता और डायरेक्शन चेंज कर लेता, जिधर चाहे मुड़ जाए. वुल्फ के हाथ नहीं आता क्योंकि वुल्फ इतनी तेज भाग ही नहीं सकता जितना हाउंड भागता है ना. हाउंड तो खैर बहुत तेज है, लेपर्ड की तरह, वो चीता की तरह. लेकिन वुल्फ फिर शिकार करते हैं. एवोल्यूशन ने वुल्फ को सिखा दिया है, भेड़िए को सिखा दिया है कि आपने भागते हुए खरगोश को पकड़ना कैसे. वो फिर दो भागते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, जिधर मर्जी तू मुड़ जा. ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰਸ ਹਾਉਂਟ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਵੀ. हाउंड होता है शिकारी कुत्ता, जो लंबे मुंह वाला होता है. जो ਆ ਲੰਮੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਅभी ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਿਗਰਟ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਾ ਚਲਵਾ ਹੈ. ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ. आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.